Hi everyone, welcome to GSF Civil Services classes, and this is Anjali Joshi. I am selected in 67 BPSC as a planning officer, and today I came up with a video in which I will be sharing my GS2 copy that I have actually written in the real examination of the BPSC. And previously I uploaded my GS1 copy. You can also go watch it after this video, and let's get started with this video. So in GS2, I have scored 143 marks, which is a average score this year. And in some of the question, I think the marking for the content I have written, I feel that it is less. It seems maybe biased because this is my copy, but I feel like the content I have written is better and I deserve a better marks. But nonetheless, this is what I got 143, and I will be sharing some of my tips also and what the improvement that I could have done there to maximize my score. And if you like any of the tips, you can include in your preparation, and you can also suggest some suggestions in the comment box that what videos you like to see in the future. So coming to this video, so this is my copy, and you can see that I have scored 143, and these are all the marking done here. Moving ahead, this is the first page, how it is look like. We have to mention the page number here, but this is not relevant anymore because since 68 BPSC this is not required. And yeah, so the first question I have done is of polity section. Section 1 is of polity. As you all know that we have three sections in GS2: polity, eco and geo, and science and tech. So I always do polity or eco and geo first, depending upon the questions. If the questions I feel is sync to my preparation, that I have prepared the topic, so I will do those section first, so that in my first hour I try to write those questions which I have prepared well, so I would give my best attempt there. So likewise you can also attempt the sections. So in the real examination I have opted for polity first. Okay. So in the polity I have attempted this question number second, that is the problem of center state relation is prospect in Bihar with a special reference to Bihar. Examine how the problem can be constructively handled in tune with the cooperative federalism. So here I have introduced the federalism. What does it actually mean? And our federalism is taken from the Canadian federalism. Apart from that, I have included some of the federal characteristics so that I could better deal with the problems. So I have detailed the executive and legislative and the judicial organ of the federalism and how they are separated from each other. And coming back to the problem of the center and state relations, I mentioned a few five points regarding that, and I have also substantiated with the examples like 2005 presidential rule on the recommendation of the Bihar governor Bhuta Singh. And apart from that, I have also included the judgment. So in the polity question, the value additional points would be the current affairs जो पॉलिटी के रेलिवेंट होंगे, आर्टिकल्स, जजमेंट, any special case that you like to mention or it is relevant to the question that is demanding. And then ordinance making, then again I have written the judgment. Central responsibility scheme, article 282, again I have given the example. All India services, then state subject and concurrent subject, again I have given the example. Financial problems, again I have provided some data that how it is a current financial problem between the center and the state.
Then the center state problems in Bihar, so I have given in respect to Bihar. See, this is the service commission examination of the Bihar government. Okay, so if in the question it is explicitly written that आपको बिहार के रेफरेंस में बताना है कुछ, देन यू हैव टू डू इट, राइट. अगर एक्सप्लिसिटली नहीं भी रिटन है तब भी बिहार के रेफरेंस में बताओ, डू इट. यहाँ पे आप बैलेंस वे में बताओगे जो भी डिमांड है क्वेश्चन का. यहाँ पे आप चलो ठीक है 4-5 एक पैरा 1-2 पॉइंट के रूप में आप बिहार का रेफरेंस दोगे, चाहे आपसे पूछा हो या ना पूछा हो, ठीक है. सो दिस इज़ मैंने बिहार के बारे में सेंटर स्टेट प्रॉब्लम्स का बता दिया. इसमें तो पूछा है विथ रेफरेंस टू बिहार. मैं आगे भी दिखाऊंगी जिसमें नहीं भी पूछा है मैंने उसमें भी डाला है. सो ये हो गया, आप पॉज करके देख लेना. बिहार स्पेशल स्टेटस डिमांड कास्ट बेस्ड सेंसस. फिर मैंने सॉल्यूशन बता दी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खुद लिखा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेते हुए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. सो मैंने उसके सॉल्यूशंस को बता दिए, 1-2 पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया एंड दस आई हैव concluded it. So in this question I have scored 17 marks. Okay, so in this is matlab 17 marks in the polity section is considered good. Then the second question I have done is the third question, emergence of regional political parties. Do you think the existence of regional political parties is good for satisfying the regional aspiration and the national unity? So you can see कि यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा. रीजनल एस्पिरेशन में आपका पॉजिटिव की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, नेशनल यूनिटी की तरफ थोड़ा सा निगेटिव की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, और इमरजेंस तो एक पार्ट है ही. तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हो गए. तो मैंने एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग से कि अभी करंट क्या पोजीशन है इंडिया का. तो मैंने वहाँ पे डेटा दे दिया कि कितने रीजनल और स्टेट पार्टीज और कितने नेशनल्स पार्टी हैं. मैंने इमरजेंस बता दिया जिसमें नेहरूवियन एरा को मैंने इंट्रोडक्शन में ही दे दिया कि नेहरूवियन एरा के बाद रीजनल पार्टी स्टार्ट हुई थी, और मैंने वो फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया कि रीजनल पार्टी का क्या ट्रेंड रहा है और 2014 के बाद कैसे सिंगल पार्टी फिर से पावर में आ रही है. उसके बाद मैंने बताया कि रीजनल पार्टी बिहार में क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे बिहार का एक्सप्लिसिटली नहीं पूछ रहा बट आपको बिहार मेंशन करना है, ठीक है. यही मैं बता रही थी पहले. तो यहाँ पे आप बता दो कि आरजेडी लेड कोलिजन, एनडीए लेड कोलिजन, आरजेडी प्लस जेडीयू का. फिर उसके बाद आप ये पूछ रहा है रीजनल एस्पिरेशंस को. तो यहाँ पे मैंने प्रोज बता दी कि कैसे रीजनल एस्पिरेशंस को ये इम्प्रूव करता है. तो उस रीजनल एस्पिरेशंस के लिए कि मतलब मैं हर पॉइंट को सब्सटेंशिएट करती हूँ. मंडल पॉलिटिक्स हो गया एग्जाम्पल्स के साथ, फिर इलेक्टोरल फेडरलिज्म हो गया, डिबेट एंड डिस्कशन हो गया, प्रैग्मेटिक देन आइडियोलॉजिकल हो गया, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो गई. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स मैंने बता दिया रीजनल पार्टी के. तो रीजनलिज्म इंक्रीज हो जाता है, कास्टिज्म आ जाता है, मास ट्रेडिंग आ जाता है, अनस्टेबिलिटी हो जाता है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट के लिए गवर्नेंस के लिए थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती है. देन उसके बाद मैंने उसको कंक्लूड कर दिया. तो इन दिस ऑल्सो आई गॉट 17 मार्क्स विच इज़ एवरेज मार्किंग एंड इट इज गुड मार्क्स कंसिडर्ड इन द GS2. देन क्वेश्चन नंबर 4, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू है, साइलेंट फीचर इसको बोला जाता है. जुडिशियल एक्टिविज्म फर्दर ऐड होता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. सो अगेन आई हैव इंट्रोड्यूस विद द जुडिशरी एज ए इंटीग्रल पार्ट, एंड यहाँ ही पे मैंने जुडिशियल एक्टिविज्म को थोड़ा इंट्रोडक्शन में डाल दिया. जुडिशियल रिव्यू को मैंने बताया कि आर्टिकल 137, इवोल्यूशन बता दिया जुडिशियल रिव्यू का, जजमेंट और एग्जांपल्स बता दिए मैंने जुडिशियल रिव्यू के कि कैसे ये साइलेंट फीचर है. एंड फिर मैंने उसके कोटेशन में दे दिया कि क्यों इसको साइलेंट फीचर बोला जाता है, और इसको जैसे जो हमारे फॉर्मर CJ आई थे उन्होंने क्यों बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने उनका एक कोटेशन डाल दिया. फिर उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन था कि ये फर्दर ऐड कर देता है क्या पावर, तो उस पे मैंने दे दिया कि कैसे ये ऐड करता है पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल को कैसे ये निगेट करता है. एंड उसके एग्जांपल्स दे दिए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिए एग्जांपल्स मैंने.
एंड फिर उसके बाद मैंने ये बता दिया कि इम्पोर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू एंड एक्टिविज़म का, क्योंकि आपको हमेशा वो मतलब उस डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में अभी चल रहा है हमारा गवर्नमेंट और जो भी सिस्टम है. तो जुडिशियल रिव्यू एंड द एक्टिविज्म इज़ अ वेरी मच पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट पावर्स. सो वी कैन नॉट निगेट इट, राइट. There is some negatives, but we have to always conclude positively that it is a good thing, right. तो हमें उसका importance दर्ज करना है. And then again I have criticized थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज बता दिया कि वहाँ पे जैसे नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी कमीशन वाला 2014 का केस था उसका बता दिया, एंड मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट है इलेक्शन कमीशन पे उसका बता दिया, एंड देन आई कंक्लूडेड इट. सो इन दिस क्वेश्चन आई हैव गॉट, ये क्वेश्चन नंबर है 4. इन दिस क्वेश्चन आई हैव गॉट 20 मार्क्स. सो आप जितना जजमेंट डालोगे, प्रेजेंटेशन बढ़िया करोगे तो आपको ये मिलेगा. देन अगेन आई मूविंग अहेड. अब हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट्स हो गए पॉलिटी के. तो अब जियो एंड इकोनॉमी का बात है, तो पॉलिटी का मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए. पहला आर्टिकल, दूसरा जजमेंट, तीसरा करंट बेस्ड न्यूज़, चौथा डायग्राम प्रेजेंटेशन इफ़ पॉसिबल. आपको ट्रेंड बताना है, ठीक है, आपको ट्रेंड बताना है कि अभी तक क्या वेरिएशन हुई है. चौथा वुड बी द अदर कंट्रीज सोर्सेज, जो हम नहीं पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशन का, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या अदर कंट्रीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो गए. फिर उसके बाद आर्टिकल हो गए, जजमेंट हो गए, कास्ट बेस्ड करंट बेस्ड न्यूज़ हो गया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार रिलेवेंसी इन एवरी क्वेश्चन, वेदर आस्क्ड और नॉट आस्क्ड. So these are the few points you have to mention it, right. Moving ahead to the second section, that is of geography and economics. So इसमें मैंने पहला क्वेश्चन किया था, picture of industrial development in Bihar compared with the industrial development of India, indicate the causes of industrial backwardness, illustrate the recent. So आप देख रहे हो यहाँ पे एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट कंपैरिजन का हो गया, तीसरा पार्ट रिमेडल का हो गया, नहीं सॉरी, तीसरा पार्ट इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का हो गया, चौथा पार्ट आपका रिमेडल का हो गया, तो स्टेप्स का हो गया. तो इसमें मैंने स्टार्ट किया, एग्रेरियन इकोनॉमी है, ये सारे डेटा डाल दिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बिहार गवर्नमेंट डाल दिया. फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री का क्यों रेटिंग है, तो उस पर भी मैंने डेटा डाले. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैंने बता दिया बिहार का कि क्या प्रोग्रेस है, तो इस पे मैंने मैप्स वगैरह भी इंक्लूड किए. आगे मैं बताऊंगी कि इकोनॉमिक और जियो में आप मैप को लो, क्योंकि वे वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मैप से जितना प्रेजेंट कर सको बिहार के, वर्ल्ड के, इंडिया के, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा रहेगा. थोड़ा मोनोटोनिसिटी भी कम होता है ना, जैसे आप इस पेज में देखोगे आपको सिर्फ कंटेंट दिख रहा है, जैसे ही आप इसमें आते हो ना तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है. ओके, कुछ डायग्राम्स हैं. फिर मैंने बता दिए कि मिनरल रिच रिसोर्सेज क्या है, बेटर कनेक्टिविटी क्या है. फिर मैंने टाइप्स भी बता दिए, क्योंकि अभी रीसेंट डेवलपमेंट पूछ रहा है तो मैंने टाइप्स बता दिए, मैंने यहाँ पे भी वो मेंशन कर दिया कि क्या है. फिर मैंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का मैं बताया कि इंडिया में क्या है, फिर उसका मैंने मैप बताया कि कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर है. फिर उसके बाद कॉजेज़ बता दिए मैंने प्रेजेंट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन का. एंड फिर उसके बाद मैंने बताया कि ये बेसिकली मैंने ये बताया कि क्या कंपैरिजन है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन का. तो यहाँ पे ना मुझे क्या करना चाहिए था ना कि ये है ना, इसकी जगह पे मुझे लिख देना चाहिए था कि कंपैरिजन, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इसका सही होता. कंटेंट वाइज इट इज़ टॉप नॉच मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जितना भी इंडस्ट्री का पढ़ा था ना उसको मैंने उसको मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग. और बैकवर्डनेस मैंने बता दिया, एंड फिर स्टेप्स भी मैंने काफ़ी बता दिए कि क्या क्या लिया गया है. एंड 7 निश्चय योजना मैंने फिर उसको मतलब उसको इलाबोरेट भी किया. देन इसको मैंने कंक्लूड किया. इसमें मुझे सिर्फ 14 मार्क्स मिले, जैसे आप देख रहे हो. आई थिंक
थोड़ा सब्जेक्टिवनेस तो होता है ना चेकिंग में. We can't really ignore this, but I also feel that कि इसमें प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा नहीं था. प्रेजेंटेशन वॉज लैकिंग. आप यहाँ पे देखोगे ना तो मैंने क्या किया ना कि ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, क्या बोलते हैं बिहार में, इसमें पूछा ठीक है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बताओ बिहार में, विच इज़ गुड. वहाँ तक मेरा टूट कंपेयर विद द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे लैकिंग हो गया. मुझे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा था ना, टाइप ऑफ इंडस्ट्री में बता रही, इसी में मुझे इंडिया का भी डाल देना चाहिए था एक कंपैरिजन मोड करके. तो मैंने इसको अलग से किया ना तो वो कंपैरिजन नहीं दिख रहा था. तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे 14 मार्क्स मिले. सो आप देख रहे हो कि आपका ना कंटेंट अच्छा हो बट आपने उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया हो तो आपको मार्क्स कम मिलते हैं. यहाँ एग्जाम्पल है. आप मेरा कंटेंट पढ़ लेना, कहीं आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए, वैल्यू एडिशनल पॉइंट मिल जाए. ठीक है, मूविंग अहेड. 7. एज पर नीति आयोग इंडेक्स और रैंक 18 आउट ऑफ इट ना, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटी सिचुएशन, हेल्थ सिचुएशन, आर दे सफिशिएंट. सो फैक्टर्स पूछ रहा है 1 पॉइंट, दूसरा पूछ रहा है स्टेप्स क्या देखे, दूसरा पॉइंट, एंड सफिशिएंट है कि नहीं, तीसरा पॉइंट. तो हमारा राय भी पूछ रहा है ये. सो मैंने वही कंक्लूड किया जो वहाँ पे था 18 इंडेक्स, उसके साथ थोड़ा सब्सटेंशिएट कर दिया कि क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से पिटी सिचुएशन है. मैंने फैक्टर्स बता दिए सारे, आप देख लेना. इंडर लिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल, जेंडर इनइक्वालिटी, एंड फिर उसके बाद मैंने स्टेप्स बता दिए जो पूछा था. फिर उसके बाद मैंने वे फॉरवर्ड बता दी कि आर दे सफिशिएंट. तो यहाँ पे जो सफिशिएंसी वाला फैक्टर था ना वो यहाँ पे कवर हो गया. तो यहाँ पे मैंने बता दी सारे पॉइंट्स. तो इसमें आप देखो मुझे 22 मिले. एक्चुअली एग्जामिनर को ना पता चलना चाहिए कि आपने सारे पोर्शन कवर कंप्लीट किए हैं, तो वो फिर अच्छे मार्क्स देता है. सो यहाँ पे ये कंक्लूज़न. सो आप इसका देख लेना. मैं एक बार और स्क्रॉल कर देती हूँ. मूविंग अहेड. हाँ, और एक चीज़ और, आप मेरी हर पॉइंट्स में देखोगे ना कि मैंने कुछ डेटा ज़रूर डाला है. अब देखो यहाँ पे मैंने इंद्रधनुष मिशन डाला है तो उसका ये डाला है, उसके नीचे मैंने डाल दिया कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या है. फिर उसी तरह आप ये देखो एम्स एट दरभंगा. आपको ये देख के क्या लग रहा है कि ये मैं कहाँ से पढ़ा होगा. ये मैंने प्रीलिम्स के टाइम पढ़ा था SPD में, या जो बिहार करंट अफेयर्स होता है ना उसमें पढ़ा था मैंने ये, उसको मैंने डाल दिया इसमें. उसी तरह आप जब देखो बेगूसराय मेडिकल डिवाइस पार्क बजट में है, तो बजट कहाँ पढ़ते हो आप, ज़्यादातर प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो. उसके अलावा जमुई हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड, कंप्लीटली बिहार करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स. ठीक है. और आप देखो नंबर ऑफ बेड्स कवरेज कम है, तो इसका भी मैंने डेटा दिया है. आप ऊपर देखोगे ना, देखो आप यहाँ पे देखो लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी 1 बेड पर लाख. तो ये सब कहाँ से, आप जब इसका नोट्स बनाओगे ना तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा कहीं पे भी कि आपको डेटा मिलते जाएं. आपको पॉइंट मिल गया कि बेड्स कम है, सर्च मारो आपकी बेड्स कितने हैं, वैल्यूज़ क्या है इसकी. ठीक है. और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना, 2-3 पेजेस का PDF बना लो या नोट्स बना लो, जो भी आपको सही लगे. उसमें सेक्शन वाइज कर लो कि हेल्थ से रिलेटेड डेटा मुझे इतना लिखना है यहाँ पे, मतलब इतना डिवाइड कर लो. एक पेज है, यहाँ पे हेल्थ हो गया, यहाँ पे एजुकेशन हो गया, यहाँ पे आप एनर्जी लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो डिफेंस लिख लो. ठीक है. इसका जितना भी आपको डेटा रिलेवेंट लगता है वहाँ पे लिख लो. और इस PDF को 2-3 पेजेस के जो आपके नोट्स हैं इसको डेली रिवाइज करो. कैसे नहीं डेटा याद रहेगा, डेली रिवीजन करो इसको, बिल्कुल डेटा याद रहेगा. ये लिख लो यहाँ पे कि अच्छा एजुकेशन पे आएगा, अच्छा एनर्जी पे आएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोलर एनर्जी हमारे पास कितना है, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास कितना है. ये सब क्वेश्चन पूछता है BPSC.
तो आपको कितना हेल्प लगेगा। आप सोलर एनर्जी में बता दोगे कि 150 गीगावाट है, अभी न्यूक्लियर एनर्जी बना दोगे कि अभी 6.75 गीगावाट ही है इंडिया का कैपेसिटी। देख लो, अभी तक मुझे याद है। क्योंकि मुझे याद है क्योंकि मैं ना बहुत लिंकिंग करके लिखती थी, और ऐसे पीडीएफ्स मैंने बना के रखे हैं जो मुझे हेल्प देते हैं कि डेटा वाले। अब तो पुराने हो गए होंगे तो मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल भी पुराना होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। पर अगर पहले 149 होगा तो अभी 150 होगा, ऐसे होता है। ये मैं ऐसे सब ये कर बता रही हूँ। बट सोलर एनर्जी के लिए तो इंडिया गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, तो ये इतना कम माइन्यूटली इंक्रीज़ नहीं होता है, ये ज़्यादा ही होता है। मैं बता रही हूँ कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब 1 साल पहले का भी डेटा लिख दो। तो बस आप सोर्स बताना ज़रूर डेटा लिखने के टाइम, ये सोर्स आपका क्या है। हो गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन था, हाँ, मेजर नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग इन बिहार, आउट ऑफ दिस सेलेक्ट एनी दीज 2 पॉकेट्स वेयर दे आर फाउंड एंड नरेट देयर इंपॉर्टेंस इन द बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें बेसिक मेजर नेचुरल रिसोर्सेज पूछ रहा है, तो मैंने नेचुरल रिसोर्सेज बता दिए, रिवर, सॉइल, मिनरल्स। एंड फिर उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस बताई, क्योंकि इंपॉर्टेंस पे ज़्यादा फोकस करा था। तो मैंने सॉइल को लेके एग्जांपल दिया कि सॉइल कैसे हमारे एग्रीकल्चर, बिहार के एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस रखता है। फिर उसके बाद मैंने सारे डेटा भी दिए हैं, आप देखो कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है बेसिकली। तो मैंने वो बताया, क्रॉप प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद ये कैसे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो पेपर इंडस्ट्री, शुगर मिल को कैसे सपोर्ट करता है। डेटा दिया मैंने उसका, क्योंकि ये सब बजट में मैंने पढ़ा था। बिहार इथेनॉल पॉलिसी को लिखा। फिर उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज में मैंने लाइम स्टोन्स लिखे, और इसमें मैंने वो भी मेंशन कर दिया कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंस मेंशन कर दिया सीमेंट इंडस्ट्री का। एंड फिर उसके बाद वे अहेड लिख दिया कि कि और आगे क्या हो सकता है, एंड देन इसको ये कर दिया, कंक्लूड कर दिया। तो इसमें भी मुझे 17 मार्क्स मिले। मूविंग अहेड, तो अब हमारा थर्ड सेक्शन आता है साइंस एंड टेक का। तो साइंस एंड टेक में 2 क्वेश्चंस करने रहते हैं, टोटल हमें 8 क्वेश्चन करने थे 67 में। अब वो चेंज हो गया, तो आपको पता ही होगा कि क्या है। 68 में क्या होता है कि 5 हमें करने होते हैं शॉर्ट और 2 हमें करने होते हैं लॉन्ग। तो पहले 2 सेक्शन में तो यही रहता है, सेक्शन 1 एंड 2 में। साइंस और टेक में 5 हमें शॉर्ट और 1 हमें लॉन्ग, साइंस और टेक के लिए। तो अब चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें फ्लड प्रोन स्टेट्स वाला मैंने चूज़ किया था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है। तो ना आप देखोगे ना, फ्लड एंड ड्राउट पे बीपीएससी बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो ये आई थिंक जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो इस पे अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि बिहार में मतलब कितने पेरिनियल रिवर्स हैं, एंड कोशी का भी मेंशन किया। फिर ये वाला चार्ट बनाया, ये वाला डेटा मुझे कहाँ से मिला, ये मैंने यहाँ से मिला, बिहार DMA। ये बेसिकली बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का साइट से मुझे ये डेटा मिला, क्योंकि मैंने लिखा था कि फ्लड इन बिहार, तो मुझे ये साइट आ गई, तो वहाँ से मुझे ये डेटा मिला। तो वहाँ पे ये मैप नहीं है, वहाँ पे डेटाज दिए हुए हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैंने उस सारे डिस्ट्रिक्ट्स को ना थोड़ा सा जनरलाइज करके एक मैप बना लिया, ताकि मैं उसको जल्दी से कोट कर पाऊँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता कि आप सब डिस्ट्रिक्ट्स लिख सको। फिर मैंने कॉजेज़ बता दिए कि फ्लड में कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ की क्या है, बिहार में जो फ्लड आते हैं उसके कॉजेज़ क्या हैं, फिर वो बता दिए मैंने। तो कॉजेज़ बताए, एंड फिर उस पर बाद मैंने बस कॉजेज़ इसलिए बताए ताकि जो मैं साइंस और टेक का सॉल्यूशन बता रही हूँ वो इससे ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो कॉजेज़ पूछा नहीं एक्सप्लिसिटली, बट मैंने बस एक फ्लो चार्ट में बना दिया कि मेरा आंसर थोड़ा कंप्लीट लगे। साइंस और टेक का बता दिया, तो मैंने वो बताया कि क्या मॉडल हम फॉलो कर सकते हैं। फिर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने फ्लड रेगुलेशन जोनिंग बताई कि फ्लड रेगुलेशन सैटेलाइट की मदद से कर सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं GIS इमेजेस की वजह से। एंड देन उसके बाद फॉल्टी इम्बैकमेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, सिल्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद मैंने बताया कि
साइंस और वही कंक्लूडन कर दिया कि साइंस और टेक के मदद से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने काफ़ी इंटरनेशनल हेल्प ली हैं, जिसके थ्रू जो साइंस टेक की नॉलेज की मदद से हम जो बिहार में फ्लड के जो डेंजरस चैलेंजेस आते हैं उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो इसमें मुझे कितने मिले हैं? इसमें मुझे 16 ही मिले हैं। तो इसमें आई वुड से कि मुझे कम मिले हैं, ये आई वुड फील कि इसमें कम मिले हैं। बाकी जो ऊपर मुझे कम मिले थे, आई कैन से कि हाँ वहाँ रिप्रेजेंटेशन गलत अच्छा नहीं था, कंटेंट अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, बट इसमें आई जेन्युइनली फील कि मुझे कम मार्क्स मिले हैं। इसमें मुझे आई गेस 19-20 तो मिलने चाहिए थे। ठीक है, देन आता है नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द पीपल लाइफ फॉर द बेटर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। सो ये नैनो टेक्नोलॉजी पे था। ये भी बहुत ही मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन था, क्योंकि इससे पहले भी जो बीपीएससी एग्ज़ाम लिया था ना, शायद किसका तो लिया था, एएओ का था और सीडीपीओ का था, तो उसमें उन्होंने किसी एक एग्ज़ाम में नैनो पूछा था। तो इससे आपको ये भी पता चलता है ना कि बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स लेती है, जो मतलब जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न पे ही होती है, उसके क्वेश्चंस भी आप देखो, तो एक ना वो पता चल जाता है, क्या बोलते हैं, कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा करंट अफेयर्स, कौन से मंथ का और कौन से ईयर का करंट अफेयर्स पे फोकस है उनका। तो ये सब बहुत पता चल जाता है। कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी पूछ रखा था, तो मैं भी इससे भी प्रिपेयर करके गई थी। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा न्यूमेरिकल फार्मूला दे दिया, नैनो है तो, एंड 2 अप्रोचेस बता दिए, थोड़ा डायग्राम डालो साइंस टेक में। फिर एप्लीकेशंस बताए, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशंस ही पूछ रहा है कि ह्यूज पोटेंशियल है, तो बेसिकली एप्लीकेशन उसको अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स के साथ आप डालो। तो मैंने हेल्थ सेक्टर में डाला, एग्जांपल डाला, टेक्सटाइल सेक्टर में डाला, फिर उसके भी एग्जांपल डाले कि क्या यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए डाला तो उसके लिए भी एग्जांपल डाले इसरो का। फिर यहाँ पे मैंने फूड सेक्टर्स के लिए डाला, नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए डाला, तो नैनो यूरिया का डाला जो गुजरात में बना है। फिर उसके बाद मैंने ये डाल दिया कि कैसे प्रोडक्टिविटी और कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में 20-25% इनिशिएटिव्स डाल दिए मैंने, निगेटिव्स डाल दिया। निगेटिव्स को मैं थोड़ा इलेबोरेट कर सकती थी कि, लेकिन मुझे याद है कि थोड़ा टाइम क्रंच था, आई गेस 5 to 8 मिनट्स ही बचे हुए थे और मुझे कंप्लीट करना था। तो तो इसीलिए मैंने इसको फ्लो चार्ट में ही डाला, ताकि मेरा क्वेश्चन ना कंप्लीट दिखे कि मैंने निगेटिव्स भी हैंडल कर दिए हैं एंड देन उसको कंक्लूड कर दिया। तो आई गेस इसमें मुझे मिले हैं 20 मार्क्स मिले हैं मुझे। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन है ना, 20 मार्क्स मिले हैं, विच इज़ अ गुड मार्क्स। सो ये था। मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी आप लोगों को, अगर आपको सही लगे तो आप इंक्लूड कर लेना। सो फॉर पॉलिटी आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अबव, ठीक है। फॉर इको एंड जोग्राफी आई वुड से मैप इंक्लूड करो, बिहार, इंडिया एंड वर्ल्ड। इसका मैंने पहले ही बताया है। बिहार का तो आप बना लोगे यार, 5 सेकंड बहुत मैम है इसके लिए, 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इसके लिए 20-25 सेकंड ले लो, फास्ट बनाओ मैप, ठीक है। दूसरा आपको डेटा मैंने बता दिया कि डेटा आप कैसे बनाओगे, 2-3 पेजेस का बना लो डेटा, हर सेक्शन का इम्पोर्टेंट सेक्शन का डेटा, पॉवर्टी का हो गया, एजुकेशन का हो गया, हेल्थ का हो गया, एनर्जी का हो गया, ये सब वुमेंस का हो गया, सबका डेटा लिख लो। देन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मैप हो गया, डेटा हो गया, स्कीम्स लिखो, क्योंकि अगर आपसे कुछ पूछता है पॉवर्टी या हेल्थ पे ही पूछता है, अगर वो आपसे स्कीम्स नहीं भी पूछता है ना, फ्लो चार्ट बनाओ, जैसे आपको मन है वैसे बनाओ। वहाँ पे 1-2 स्कीम्स का नाम लिख दो कि बिहार सरकार क्या लेती है और इंडिया सरकार ने क्या लिखा है। बिहार सरकार की स्कीम्स लिखो यार, क्योंकि एक्सप्लिसिटली बिहार सरकार की स्कीम्स ज़्यादा पूछती है, इंडिया की नहीं उतनी पूछती है। तो ये देख लो, इंडिया का भी छोड़ना मत, क्योंकि इंडिया के भी पूछ देगी। आपको ना होलिस्टिक प्रिपरेशन करना चाहिए, ऐसा नहीं चलो सिर्फ ये बिहार का ही करके रख ले या इंडिया का ही करके रख लें। बिहार का तो आपको करना ही करना है इंडिया का। इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, सिंपली कर डालो उसको, ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए डायग्राम, विजन मैगजीन देख लेना,
मिल जाते हैं उसमें डायग्राम जो आप एग्ज़ाम के लिए बना सकते हो। इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के थ्रू क्या ले रहे हैं एंड निगेटिव्स उसके, और उसको काउंटर कैसे करेंगे निगेटिव्स को। क्योंकि ना जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उस पर रेगुलेशन नहीं होता है, मतलब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी कोई रेगुलेशन नहीं बना है वर्ल्ड लेवल पे भी, इंडिया लेवल पे भी। तो ये सब आप मेंशन करो कि रेगुलेशन, विदाउट रेगुलेशन द टेक्नोलॉजी इज़ ऑफ डेंजरस फॉर द ह्यूमैनिटी, राइट। एआई का भी देख लो, रेगुलेशन ही नहीं है। अभी इस पे वर्ल्ड लीडर्स चर्चा कर रहे हैं, जो हाल ही में G7 समिट हुआ था, ठीक है। तो आप ऐसे लिंक करके डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि एआई पूछा है तो बिल्कुल साइंस और टेक एकदम प्योरली रखो, नो नो नो। इसमें आप जियो पॉलिटिक्स का भी कुछ पार्ट डालो, इसमें आप डालो थोड़ा सा सोसाइटल इंस्टेंस भी डालो। जो इसका एप्लीकेशन बेस्ड पूछ रहा है ना, वो तो खुद ही हो गया ना। आप इसमें थोड़ा सा इसका टेक्निकल एक्सपेक्ट डालोगे, प्लस इसका डालोगे इम्पोर्टेंस डालोगे कि किस सेक्टर में इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और इनिशिएटिव याद रखना यार, इनिशिएटिव्स इसका याद रखना, कोई भी चीज़ का कि इंडिया क्या इनिशिएटिव ले रही है। अगर वर्ल्ड का याद रखो एक दो तो बहुत बढ़िया, नहीं भी रखोगे तो दिक्कत नहीं आ रही। अगर बिहार गवर्नमेंट ली है इसका इनिशिएटिव तो वो तो बिल्कुल मेंशन कर देना। बाकी आई गेस मुझे जितने पॉइंट्स पता हैं और मुझे लगा इम्पोर्टेंट है वो मैंने शेयर कर दिए। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड आगे की वीडियोस का कमेंट में प्लीज़ बताना कि क्या करें। आप सजेशन देना कि आगे कौन सी वीडियोस आपको देखनी हो। एंड फॉर मी आई थिंक मुझे लगता है कि मैं नोट्स मेकिंग पे वीडियो लाऊंगी अपनी। एंड लाइव आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।